ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ نانیاں اور دادیاں اپنے گرینڈ چلڈرن سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن کیا مجھے بتائیں کہ یہ محبت ان کی نانی یا دادی کی ماں سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہاں ہو سکتی ہے. I would agree, yes. It's like double, triple. کیونکہ میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ مثال ہے نا، اپنے بچوں کو اگر آپ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو تو دادی نے پالا، آپ کو آپ کی نانی نے پالا. نہیں، میں اپنے بچوں کی دادی اور نانی کی بات کر رہی ہوں. Both of them اتنا پیار ملا ہے. My daddy used to keep, چھوٹے چھوٹے جارز، اور اس میں کوکیز اور بسکٹس اور مینٹوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھتی تھی. وہ مجھے بھی نہیں بتاتی تھی، وہ کہتی تراؤ. تو بچے بڑی شوق سے ان کے پاس جاتے تھے، یہ چیزیں ملیں گی، عیدی ملنی، چیزیں ملنی. تو وہ ایک بڑی اٹریکشن. اسی طرح ان کی جو دادی ہیں، اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے، شی واز لائک اتنا پیار. دونوں دادا دادی اپنے ان کے اسکول سے آنے سے پہلے گرمیوں میں یہ کملائے ہوئے اسکول سے آتے تھے، تو وہ ان کو ٹھنڈا لیمو پانی بنا کے، آج بھی وہ یاد کرتے ہیں. وہ جو لیمو پانی امی بناتی، وہ ان کو امی بولتے تھے، اور وہ جو چپس بنا کے دیتے، تو وہ یادیں رہ جاتی ہیں. اور وہ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ایز اے ورکنگ مدر مجھے وہ ٹائم نہیں ملا اپنے بچوں کو اس طرح انجوائے کرنے کا، جیسے کہ ان کے دادا دادی کو یا نانا تو بہت جلدی چلے گئے تھے، نانی کو ملا. تو یہ چیز ایک فیکٹر ہے. آپ ایسا ہی ہے. میں بھی اس بارے میں یہ کہوں گی کہ رشتے ایسی بے لوس رشتے ہیں. مطلب ہاں کچھ جگہوں پہ ایسے ہوں گے جو میں نے آپ کو اگزامپل ابھی دی بریک میں، کہ ایسے ہیں رشتے جو نانیاں بھی نہیں کرتی اپنے اولاد کے نوازوں سے پیار، کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں ان کے گرجز ہوتے ہیں کہ ان کو داماد نہیں پسند، یا انہیں بیٹی کی پسند نے شادی کر لی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بچے کو بھی پیار نہیں کریں گے. بٹ وہ دکھاوے کا پیار کرتے ہیں، بٹ وہ جینوئنلی پیار نہیں کرتے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جینوئن پیار اور ایک بے لوس پیار میں آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک فنی جو وار فیئر ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ بچے ننیال سے ہو کر آئے ہیں، کسی نے کھانس دیا تو دادی بولے گی، یہ میں اپنے گھر کی نہیں بتا رہی ہوں، جنرل بتا رہی ہوں. تو ہم چونکہ میں اسکول میں تھی، تو میری اسٹاف روم میں اکثر ایسی کانورسیشن، بچے نے کھانس دیا یا کوئی وامٹ کر، ہاں نانی کے گھر سے ہو کے آیا ہے، اسی لیے کھایا ہے، تو کتنی دفعہ کہا ہے کہ فلاں نہیں کھلایا کرو، کیچپ کھائی ہوگی، یقیناً نانی نے کھلایا. تو وہ ایک وہ بہت ہوتا ہے. یا وہ دادی کے ہاں سے آئے تو نانیاں کہتی ہیں، ہائے توبہ کتنا ڈرا ہوا بچے، اس کو کھیلنے کھانے نہیں دیتے، اس کو فلاں نہیں کرنے دیتے، کیوں دبا کے رکھا ہوا. تو ایک وہ بڑا، چونکہ کلچرل سیٹ اپ ہر فیملی کا سلیکٹلی فرق ہوتا ہے. تو بچے بیچارے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، میرا کیا میں بھی ایسے ہی ہے. مطلب ہم یہاں مدر لا کی، وہ بھی وہاں پہ دیکھیے فلمز بنی ہوئی ہیں، مانسٹر لا فلمز بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ جو نانی ہے اور دادی، ان کے ریلیشن شپ پہ بھی بڑی مزے کی نوک چوک دکھاتے ہیں اپنے فلمز کے تھرو. ڈاکٹر بطول اشرف جی جناب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ جیسے میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ وہ ہے نا کتنا مشہور ایک فقرہ ہے کہ اصل سے سود پیارا، تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرو فیکٹ کہ نانی اور دادیاں ماں سے بھی زیادہ محبت کر لیں بچے سے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ جو پیرنٹس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا، ایک تو یہ کہ یہ تھوڑا سا بلڈ اس پہ آ جاتا ہے نا، جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، تو وہ اس کو اسی سے کہا گیا ہے کہ اصل سے سود پیارا. کیونکہ جو آپ اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے، تو وین یو بیکم اے گرینڈ مدر، آپ وہ جا کر جو ہے ان کے بچوں میں پورا کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، وہ ٹائم فیکٹر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں وہ بچوں تک کے جو ٹرانسفرنس ہو رہی ہے، تو وہ جو ٹرانسفرنس ہے نا، اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے اپنے سگی اولاد کو نہیں دیا ہوتا، وہ اولاد کی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صرف گرینڈ کے ہی لیول پہ آ سکتے ہیں، چاہے وہ دادی ہوں چاہے نانی ہوں. ٹرو. ویسے بچے چونکہ کسی یوزر مینول کے ساتھ تو آتے نہیں دنیا میں، تو پیرنٹس کو بھی ہمارے یہاں کوئی پیرنٹل ٹریننگ تو ملتی نہیں ہے. خوش قسمت ہیں وہ پیرنٹس جن کے گھر میں بزرگ ہیں، تو وہ جو اپنی ٹریننگ یا پیرنٹنگ سے سبق سیکھے ہوتے ہیں نا، تو اگلے میں بہتر پیرنٹنگ سامنے آتی ہے. بالکل. میں ہماری آپ سے بھی یہی سوال جو میں نے ان سے پوچھا ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اصل سے سود پیارا والی بات.
देखिए जब मेरे हुए बच्चे तो बिल्कुल मैंने तो अपनी अम्मी से सबसे पहले, बिकॉज वो पहला ही बेबी था मेरे ननियाल वाली साइड पे मेरा, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ननियाल अम्मी ने बड़ा किया बिकॉज मैं काम बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो अम्मी मुझे यही कहती थी कि देखो ये वाला जो टाइम है ना इसको तुम एंजॉय करो, बिकॉज मैं उस टाइम को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती थी। बिल्कुल मैं खुद भी यंग थी उस वक्त और एकदम छोटा सा बच्चा, समझ नहीं था खुद को संभालूं कि मैं उसको संभालूं, तो वो सोता नहीं था पूरी रात, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी इस चीज़ से कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ। फिर माँ में होती है स्पेशली जो पहली दफा माँ बनती है। हाँ एग्जैक्टली तो वो एक आप अपने आप को भी समझ रहे होते हो, फिर आपने काम भी करना है, फिर आपने अपना घर भी देखना है, मतलब एक वो टाइम एक किसी भी औरत के लिए एक बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है वो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हम लोग ना अपनी लड़कियों को ना उस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करते। हम कहते हैं बस बच्चा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई क्या ठीक हो जाएगा, अब तो असल जर्नी शुरू हुई है लाइफ की। अब तो आपने रातें जागनी है। मतलब मैं तो ऐसी हो गई थी कि मुझे तो गुस्सा आने लगा था अपने घर की तमाम खवातीन पे जो ऑलरेडी माँ थी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी बहन हो या मेरी नंद हो या मेरी अम्मी हो, भाई बताओ तो सही कि अब ये होगा तुम्हारे साथ। हम समझ रहे हैं बच्चा हो जाएगा तो हमारी जिंदगी आजाद हो जाएगी। अब तो आप मतलब ये बड़ी चीजें होती हैं। ये जो आप कह रही थी ना कि कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बताना चाहिए इस चीज के बारे में। तो अम्मी मुझे अक्सर ये कहती थी कि भाई तुम अपने बच्चे का जो ये वाला टाइम है ना इसको एंजॉय करो, ये टाइम फिर नहीं आएगा, मतलब दोबारा 1-2 साल का 6 महीने में वो क्रॉल कर रहा है, चल रहा है, वो नहीं जो कर। तो मैं इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेती थी, अरे अम्मी बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि जब वो बड़ा वाकई हो गया ना तो मुझे रियलाइज ये हुआ तब कि मेरी सास होती थी घर में और मेरी मेड, तो मैं जाती थी सुबह 10 बजे, रात को मैं आती थी 10 बजे 11 बजे। उसको ना मेरी जरूरत ही नहीं फील होती थी। मतलब ऐसा हो गया था आलियान कि उसको हर वक्त शाजिया चाहिए। शाजिया घर की मैडम बनी घूम रही है, मैडम घर पे नहीं है। सास मेरी वो पैरालाइज है 15 साल से, ठीक है, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसको चल फिर नहीं सकती। मैं कहती हूँ उनकी नजर भी काफी होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो घर पे मेड होती थी, सास होती थी और मेरा बेटा होता था, तो ऑफकोर्स उन्हीं के सास के ऊपर ही छोड़ के जा रही हूँ ना मैं। तो मेरा बच्चा ऐसा जब हो गया ना आलियान, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया। मतलब हम तो इनके लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए लगे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट मनी, योर टाइम इज मनी, योर टाइम इज एवरीथिंग, यू नो। तो मैंने फिर जब मेरा दूसरा बेबी हुआ ना मदिया, फिर मैंने उसके साथ अपना 100% टाइम गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें दोनों बच्चों की नेचर में बहुत फर्क है। एक को माँ उस 5 साल में मिली और एक को नहीं मिली, ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो दोनों बच्चे ना इसका आप पे कितना टोल होगा? हाय बहन किस चीज से बताएं आप? ये माओ पे होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा छोटा है, आपके तो फिर चलो सास है, मैं अल्लाह मियां मेरी सास को जन्नत नसीब करें। वो मेरे बच्चे से इश्क करती थी। जैसे मैं बात करें दादी की, तो मैं जब मेरी सास की डेथ हुई ना, तो मैंने अपने बेटे को, मैंने कहा सबसे बड़ा मेरे बेटे का लॉस हो गया। हाँ। वो लिटरली एक मोहब्बत भी करती थी, वो मेरे बेटे की ना कहते एक रिस्पेक्ट करती थी। वो मेरे बेटे को बुलाती बाबूजी कह के कहती कि ये बाबूजी है मेरे, ये मेरे बाबूजी हैं। तो वो छोटे से बच्चे को इतनी रिस्पेक्ट वो देती थी क्योंकि उनसे इतना रिश्ता। मैं जैसे मैं न्यू ईयर पे 3 दिन के लिए टर्की चली गई, तो मुझे पता था मेरी सास है, मैं मेड छोड़ के जाती थी। हाँ, बट मुझे पता था तो जो अम्मी जाहिर को देख सकती है ना, और ये तो है बड़ों का साया ही इतना होता है। मैं अपने बहुत अब्बू के साथ 11 दिन के लिए ज़ियारत पे चली गई, मैं और फैसल हम लोग 4 दिन के लिए उम्रे पे चले गए। तो मुझे पता था अम्मी हैं। जब मेरी सास की डेथ हुई ना, तो मुझे पूरे शहर में ऐसा लगा कि अब मेरे अलावा, मतलब अब मेरे अलावा मेरे बच्चे का कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी सास चली गई है। क्योंकि वो जो अम्मी, मेरी जो सास थी, उनका जो इश्क था ना मेरे बच्चे को लेके, तो वो मैं अब वो नहीं ना, तो अब मुझे गिल्ट होता है यार, अब मैं कैसे करूं, मैं बच्चे को स्कूल से निकल सकती। अब वो मुझे, पहले तो अम्मी थी हाँ। कुछ हो रहा है, अम्मी आप आ जाए। तो मेरी सास वो बीमार थी, लेकिन उनकी नजरें जो है ना, यही बड़ों की नजरें। आपका तो बेटा छोटा है, मेरा बेटा 20 साल का जब मेरी सास की जब डेथ हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बट कहने का मकसद है कि मुझे तब भी फील हुआ कि जब वो 20 साल का था, तो मैंने बोला कि ये अब पीछे से मैं अगर जाऊंगी तो घर का क्या होगा, पीछे जो है लारेब को कौन देखेगा। तो वो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, वो 20 साल का था। आपका तो बच्चा छोटा है। तो मुझे तब था कि यार ये तो चली गई हैं और अब क्या करेंगे। अच्छा ऐसे भी होता है कि एक और जो टेक्निकल इमोशनल गड़बड़ आती है, वो ये कि बाज़ सासें बच्चों को एहसास दिलाती हैं कि देखो, बजाय ठीक है वो हेल्प करती हैं या क्या, ये अगेन गॉसिप्स जो ग्रुप हम एज मदर्स डिस्कस करते थे। तो मेरी एक कलीग थी, तो वो कहती है कि वो मेरे बेटे को ना, जब वो जाती थी काम से वापस, तो
तो उसको कहती थी कि देखो तुम्हारी माँ तो सारा दिन गई होती है, तुम उसका तो ख्याल ही नहीं है औरत की तुम्हारा, मैं हूँ देखो। तो वो मजाक में कि इसके बाल खींचो, ये एक थप्पड़ लगाओ, हंसते हंसते ना हंसते मेरे को थप्पड़ लगाओ, कितनी गंदी मामा है, तो मैं छोड़ के चली जाती है। अच्छा भले इवन इफ इट्स अ जोक, इट्स लीविंग अ मार्क इन द चिल्ड्रंस माइंड कि मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली जाती है, ये तो घर पे होती नहीं है। तो ये बच्चे के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है। वो एक ऐसा आहिस्ता आहिस्ता छोटा या बड़ा लेकिन गल्फ क्रिएट हो जाता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है कि माँ मेरी तो घर। अब वर्क बहुत खवातीन वर्किंग वुमेन है, मजबूरी है उनकी, उनको काम करना है क्योंकि इकोनॉमी हमारे ऐसी है। यहाँ पे वर्किंग वुमेन ही बैठी हैं। बेसिकली अच्छा शी इज सो राइट। ये बेसिकली ये नहीं है कि वो बहुत उस बना कर बोल रही हैं या हम लोग, हाँ ना, लोगों की नेचर होती है। स्पेशली ये जो हम जिस दादी के एरा की बात कर रहे हैं, उनकी ये तबीयत में शामिल होती हैं चीज़ें। उनको ये नेगेटिव चीज़ नहीं लगती कि ये एक बच्चे के लिए एक ट्रॉमा होगा, माँ के लिए एक ट्रॉमा होगा और इट विल गिव अ लॉन्ग टर्म वेरी बैड इम्पैक्ट। तो उनको वो रियलाइज़ नहीं कर पाती। तो इस उसमें से जो है मेरे पास, मैं अपनी मिसाल दूंगी। मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर गायनी में जो है कर रही थी और जो है कहेंगी बतूल बहुत अच्छा मैनेज करती हैं मेरी सास सब कुछ, लेकिन बस शी इज़ वेरी नेगेटिव। आप देखें, अब आप सब मैनेज कर रहे हैं, आप एक वेरी गुड हैंड, हेल्पिंग हैंड अपनी बहू को दे रहे हैं सो दैट शी कैन अचीव अ सर्टेन लेवल। ठीक है, अब मतलब शी वांट्स इट, लेकिन उनकी तबीयत में ये था, अच्छा अब तुम्हारी माँ 18 घंटे के बाद आएगी, ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें ये करेगी, सोना होगा उसको, तो ये तुमसे तो उसको प्यार ही नहीं है। ऐसा नहीं, अब वो उनकी तरबियत में इनएप्रोप्रिएट वे में नहीं, कैजुअली, बिल्कुल कैजुअल। और तो फिर जो है उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है और आपको बुरा लग रहा है, हस्बैंड ने अपनी वालदा को कहा, तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलत बात है, मैं तो बिल्कुल सही बात कर रही होती हूँ। जब वो 18 घंटे के बाद आएगी तो 18 घंटे। बच्चे ने पूछा कितनी देर में मम्मा आएंगी, तो मैंने उसको बता दिया 18 घंटे के बाद आएंगी, फिर वो आकर सोएंगी और ये। तो उसने कहा मम्मा गलत है। अब पता है कि अब इसमें किरदार कहाँ पर आया, यहाँ पर आया शौहर का। उसने जिस तरह बैलेंस किया ना, उन्होंने कहा देखें ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपको नहीं समझ, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको मिलाता हूँ। वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए और उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी आंटी की जिस तरह साइकोथेरेपी करी एंड देन शी अंडरस्टैंड दैट कि वाकई इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट बच्चे पर भी होगा और उस पर। तो अगर आप समझते हैं कि कोई एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको जो है वो सही ट्रैक पे डाल सकता है, बिकॉज शी वोंट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो उस इरा के जो लोग हैं ना, उनके लिए वो गलत ही नहीं है, वो गलत ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ सिनेरियोज क्योंकि वो उनके लिए एक डिफरेंट हट की बात है कि माँ 18 घंटे घर से गायब है, उनके लिए ये डिफरेंट बात, क्योंकि शायद ऑल्दो शी इज वेरी हेल्पफुल कि आप खाना भी मैनेज कर रही हैं और जो है वो सफाई वाली मेड को भी कर रही हैं 24 आवर्स को, शी इज वेरी हेल्पफुल। लेकिन उनके लिए वो जुमले गलत वो नहीं कंसिडर कर रही थी जो वो कह रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप समझते हैं, और वहाँ पे मैं मतलब हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन, शौहर ही बैलेंस कर सकता है माँ और बीवी के दरमियान। अगर आपको शौहर ही नहीं मान रहा तो फिर वो तो नहीं, बादशाह होते हैं, तो मैं क्या करूँ, बोल रही है तो बोलने दो, ठीक है, तुम खुद मैनेज करो, मेरी एक तो मेरी अम्मी संभाल रही है और ऊपर से तो मेरी अम्मी को कंप्लेन कर रही है, ऐसे तो ये भी फैक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे शौहर को क्रेडिट जाता है कि आपने बैलेंस किया, उसने भी उस बात को गलत समझा कि वाकई हमारी औलाद के लिए चीजें गलत हैं। तो जब एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको गलत चीज गलत लगे। अगर आपको गलत चीज गलत ही नहीं लग रही तो फिर आप उस गलत को भी सही समझ रहे हैं। लोग गलत चीज को गलत देखते हुए भी नहीं मान पाते, नहीं सही समझने के अलावा भी वो मान नहीं पाते, उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो इस बात के हामी भर सके कि नहीं आप गलत कर रहे हो। एक तो होता है कि लोगों में कहीं ना कहीं तपड़ की कमी भी होती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको पता है कि एक ये शख्स मुझे पसंद है और चलो अगर ये गलत भी कर रहा है तो आप खुद भी अपने आप को रीजन देने लग जाते हो। मेरी माँ है, वो बोलते रहते मेरी माँ कर रही है जो भी कर रही है, बट मेरी माँ है। एक चीज आप ये भी नफ्सियात सोचें जैसे सैमा जी, अगर दादी या फिर नानी जो कि बच्चे को माँ की एब्सेंस में बहुत अच्छा ख्याल करी है,
अब वो ये तो चाहती ना कि वो अगली को भी पता चले कि बच्चा अगर मैं इससे प्यार करती हूँ तो मेरा ये बच्चा भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो समाव वो भी इनसिक्योर फील करती हो कि जैसे माँ जब घर में एंटर होती है तो बच्चा जैसे बिल्कुल भाग के माँ से लिपट जाता है इस तरह, तो उसको ये फील होता हो कि अब ये एकदम से माँ को ज़्यादा मैं करता हूँ, इसका मैं रही हूँ इतनी देर से, मैं उससे मोहब्बत कर रही हूँ, मैं उसके लिए सब चीज़ें कर रही हूँ, और ये जब माँ के पास भागते हुए मुझे निगलेक्ट कर देता था, हो सकता है कि मैं भी ये भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फीलिंग आती हो हमारे बड़ों में। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहीं की इस बात की कंटिन्यूएशन में मैं स्टार्ट करती हूँ बात, जैसे ये बात हो रही है ना कि ये फलाने के मिजाज में ये है, उनकी तबीयत में ये है, उनको कद्दू पता नहीं चल रहा इट्स नॉट इन तबीयत, इट्स इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड इट इज़ वेरी मच देयर, साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है। कहीं ना कहीं डिसलाइकनेस है उस औरत के लिए, बहू के लिए, क्योंकि वो ओवरवर्क भी है, उसको भी समझे ना। हाँ नहीं देखिए, रीजन तो डिसलाइकनेस के कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, शुरू से भी हो सकते हैं। तो वो ये कि जब आपकी बॉडी में आप फील कर, और मैं बॉडी वर्ड बहुत कॉन्शियसली यूज करी क्योंकि हर इमोशन आप बॉडी में फील करते हैं। जब आप फील करें किसी के लिए डिसलाइकनेस, तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हैं, आपने उसको बाहर निकालना है, अपने बिहेवियर में भी निकाल सकते हैं, अपनी बातों में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे ये है कि ये भी अगेन कोई प्लानिंग से उस तरह नहीं इंसान कर रहा होता, आप उसी के बच्चे के साथ वो बात कर रहे हैं सो दैट कि जितना डिसलाइक आप करते हैं ताकि उतना ना सही लेकिन थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि मैं ठीक हूँ, मेरी डिसलाइकनेस टुवर्ड्स योर मदर इज राइट, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियसली ही हो रहा होता है, मैं ये नहीं कह रही कोई इतनी ज्यादा प्लानिंग से कर रहे होते हैं, लेकिन ये मिजाज नहीं होता, क्योंकि अगर आपका मिजाज है तो आप अपने नवासियों के साथ क्यों नहीं करते हैं या और रिश्तों में क्यों नहीं करते हैं, तो ये मिजाज नहीं होता है इन फर्स्ट प्लेस। एंड यस, इनसिक्योरिटी ये होती है कि जी माँ थी, प्राइमरी काम तो उसका संभालना, लेकिन जब मैं संभाल रही हूँ तो वो उनको लगता है कि मेरा माँ से ज्यादा हक है। अप टू सम एक्सटेंट वो ठीक भी होता है कि ठीक है मैं इतना संभाल रही हूँ तो मेरा भी हक है, तो सडनली उनको लगता है कि मुझे छोड़कर वहाँ, अब ये जो एक वर्ड है ना ये बहुत बुरी तरह स्ट्राइक करता है, मुझे छोड़कर वो अपनी माँ के पास चला गया, तो छोड़कर नहीं चला गया आपसे, वो अपनी माँ आपके पास से गया है अपनी माँ को मिलने के लिए, क्योंकि इतने घंटों के बाद आई है, राइट। एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग इनटू द प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू अलाउ, कि जब ये बात हो रही है ना कि माँ की मोहब्बत से ज्यादा दादी की होती है, नॉट एट ऑल, एंड आई एम सेइंग दिस विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मोहब्बत माँ से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। होता ये है कि जब आप ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं तो आपके अंदर अपनी पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी शेम लोगों ने दी होती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया बच्चों के साथ, वो शेम, वो गिल्ट, वो रिग्रेट्स, वो एक्सपीरियंसेस, यू वांट टू करेक्ट योरसेल्फ, यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आप अपना बेस्ट देकर अपने आप को बेहतर फील करवाना चाहते हैं। मोहब्बत इज देयर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन माँ की मोहब्बत के साथ कोई कंपैरिजन है नहीं, इसमें अच्छा। दूसरे फैक्टर्स हैं। अच्छा, कराची से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत बहुत टॉपिक बहुत अच्छा है मदिया, लेकिन इसमें दो चीजें हैं जरूर। पहले के पेरेंट्स से मदरस में एक चीज होती थी, जो एक आंख से वो दिखती थी तो बच्चे डर जाते थे। आज के दौर के बच्चे जो है वो जब आंख से देखो तो वो कहते हैं क्यों देख रही वो पहला सवाल का। तो हमारा तरीकेकार तो वही है, लेकिन स्टाइल चेंज हो गया है। हम लोग अपने पेरेंट्स को अभी तो जवाब नहीं दे सकते, आज का बच्चा सवाल भी करते जवाब भी देता है। तो मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ हमें चीजें वही रखनी चाहिए, लेकिन तरीका चेंज कर लेना चाहिए। बात प्यार से करें, समझाएं वही तरीके से, जैसे पहले कहते थे देखो शेर की निगाह से और खिलाफ सोने का वाला, तो बातें वही है, सब कुछ दौर वही है, लेकिन वक्त चेंज हो गया है। ना कंप्यूटराइज दौर था पहले हमारे बचपन में, ना ये मोबाइल थे, ना इतनी एक्टिविटीज थी, ना इतनी ब्रांड्स थी, ना इतनी क्वालिटीज थी, पहले ही डर होता था। तो मैं समझती हूँ वक्त तो वही है, लेकिन तरीके बस हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आज का बच्चा हमें समझा रहा होता है। हाँ, अच्छा, लेकिन मुझे बताएं जो आज का हमारा टॉपिक है, आपको क्या आपके घर में, अगर मैं आपके बच्चों की बात करूँ, अगर आपकी शादी हुई तो आपका बच्चा किससे ज्यादा अटैच है, आपकी अम्मा से या अपने बच्चे अपनी दादी से? हाँ, अटैच तो देखिए डिपेंड करता है मेरे ऊपर ना, कि मैं उनको किस साइड पे लेके जा रही हूँ। अब अगर मैं उनको ददियाल से हटाऊंगी तो फिर ये मेरी गलती है, मैं ननियाल से हटाऊंगी तो मेरी गलती है। बैलेंस से लेके चलना पड़ेगा। जहाँ गलती जिसकी भी है ना, पहले हम समझाते नहीं थे, हम डरते थे, चाहे वो सास हो चाहे वो ससुराल हो, लेकिन हमें अब समझ जाना चाहिए कि हमें हर गलती को क्लियर करना चाहिए।
तो बैलेंस रहेगा, ददियाल भी और मैदा भी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे जो हमारे साथ कॉलर जो हैं वो मौजूद थे, आपकी कॉल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ ना अगर माँ लड़की की माँ उसको टोके कि बेटा तुमने ये चीज़ नहीं करनी बच्चे की परवरिश में, तुमने बच्चे को ये चीज़ नहीं खिलानी, तुमने बच्चे को ये चीज़ खिलानी है, तो आप सुन लेते हैं। बट अगर सेम चीज़ अगर आपकी सास की तरफ से आ रही हो तो फिर पहले अम्मी से तस्दीक की जाती है, अम्मी उन्होंने ये बोला, ये करना तो है। फिर आप उस वक्त आपको एकदम लगता है किसी ने आपकी मोहब्बत को चैलेंज कर दिया कि मैं माँओं में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो ये तो एक नेचुरल सी एक चीज है कि देखिए ना, हमें भी अपनी, देखिए माँ पे ना एक ट्रस्ट फैक्टर ऐसा है कि माँ ने दिन बोल दिया तो हाँ दिन है, रात बोल दी तो रात है। अब किसी और को उस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, और एक बहुत नेचुरल चीज है कि आपकी शादी और आप अगले दिन से अगर अपनी सास को अम्मी कह रही हैं तो अम्मी कहने में और अम्मी समझने में और फील करने में टाइम लगता है। हाँ। एक तो ये एक बहुत एक चीज है जो कि मैंने अगले दिन से सास को अपनी अम्मी कहना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे यही कहा कि तुमने अम्मी कहना है, तो मैं अम्मी कहती हूँ उनको। लेकिन मेरी जो भाभी हैं वो मेरी अम्मी को आंटी कहती हैं, वो अम्मी नहीं कहती हैं। वैसे मैं इसे अगेन सॉरी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दैट। पता नहीं क्यों जबरदस्ती सास को अम्मी बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये बजाते खुद एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है, तो उसको ऐसे आप रहने सही दें। कह रही हैं, बिल्कुल कह देने से कोई माँ बन नहीं जाती और कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मियाँ मैं के माँ प्रेशर होते जितनी हैं केयर कि करती नहीं हूँ। अम्मी को अम्मी कहो, लेकिन मैं पता है, मियाँ के मेरा प्रेशर्स मकसद होते क्या है हैं। वो ये है कि कंफर्ट लेवल एक पैदा हो जाता है। आप उसको जैसे अम्मी कहना शुरू किसी भी शख्स को आप चाहे वो खाला, आप उसको जैसे माँ या माँ, तो वो एक इसी लव्स के अंदर ताकत ऐसी है कि कहीं ना किसी आपके अंदर अपनाइए तो कुछ एक वो हो रिश्ता बन जाती जाता है। है। हाँ। लेकिन देखिए फोर्सफुली आप कोई भी हाँ, चीज ना forcefully कराएं। देखिए लड़कियों की जब शादी होती है ना, हमारे यहाँ 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल, ये जो एक नॉर्मली लड़कियों की शादी, ऐसे ही है। बहुत यंग लड़कियां होती हैं, नहीं ऐसे ही पता है। होता क्या कहना, जो बड़ों ने बोल दिया आपने उसी को फॉलो करना है। बाय द टाइम यू रियलाइज दैट कि हाँ भाई ये इस तरह नहीं है, इस तरह बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। आप भी वक्त के साथ जब बड़े होते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आजकल तो मुझे लगता है कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है बिफोर मैरिज, ठीक है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो चाहे आपकी लव मैरिज हो रही हो, इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली जो है वो टू बी मदर इन लॉ से पूछ लीजिए व्हाट शी वांट्स, ठीक है। हर किसी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मदिया आजकल के लेवल पे बात कर रही हूं। लड़कियां आजकल आप अम्मी नहीं बोलना चाहती हैं। यस एग्जैक्टली, मैंने और तो ये नहीं देखा वो है। वो कहलाना कहती भी हैं, हाँ, वो कहती मदर इन हैं। लॉ भी नहीं कहलवाना चाहती, उनका एक कंफर्ट आंटी- लेवल है, तो आंटीज वो कहते हैं, खुद ही डिसाइड कर लेती है, हाँ बेटा आपने अम्मी कहना है, आपने आंटी कहना है, आपने मामा कहना है, जो भी वॉट एवर ना, सही। तो डिपेंड, वो क्योंकि बड़ी हैं, आप जिस फैमिली में जा रही हैं उनका स्टेटस बड़ा है हाँ, फिलहाल, सही है, तो वो जो चाहें आप उसको फॉलो कर लें। अब वो आंटी कहलाना चाहे आंटी कह दीजिए, मम्मा कहलाना चाहे मम्मा, अम्मी कहलाना चाहे। लड़कियों ये सुन लो, ये जरा इतनी समझदारी की बातें हो रही है ना, तो मैं नहीं चाहती आप लोग मिस करें। छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।